Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I am here with another chapter. It's the HTML hypertext markup language. First of all, I'm going to highlight the important point of the chapter. So just look at the main points. The first thing is introduction to HTML. HTML है क्या? Then headings and level. Where do we apply the headings and level? The third one is adding paragraphs. Number 4 is the text formatting and styling. And number 5 is adding images, HTML links, lists, adding video, internet safety and online behavior, and then review questions. रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो यू हैव ऑलरेडी डन इन योर नोटबुक एंड completed your notebook, so you can just revise from your notebooks, and the rest of the things we are going to solve here. और इस वीडियो को मैं 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्योंकि एक वीडियो जो है वो लेंथ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अपलोड करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. वी हैव शॉर्ट टाइम टू डू इट, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू divide this chapter into some portions. So let's start from the very beginning, and the first paragraph is about a web page is a digital document that may contain text, images, video or links to other pages. The web page is an important word, so I'm going to highlight the web page here. Web pages are usually written in HTML and are accessible using internet browsers like Internet Explorer, Chrome, Safari, etc. In this chapter, we will learn to create web pages in HTML. Moreover, we will learn to add multimedia such as images or video on our pages. Here again, I have highlighted the HTML word. HTML एक ऐसा प्रोग्राम है, किसी लैंग्वेज है जो हमारे बेसिकली वेब को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये बेसिकली यूज़ की जाती है सिंपल कोडिंग के साथ. हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं. ये एक प्रोग्राम नहीं है अकेला जो कि जिसके साथ हम वेब साइट बना सकें. इसके साथ बहुत सारे और जो हैं वो एफिलिएटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, जिनके साथ हम बहुत अच्छी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट. यू कैन डू दैट. इसके बाद हम चले जाते हैं. ऑब्जेक्टिव आपने देख लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML. लेट्स फाइंड आउट इज देयर एनीथिंग स्पेशल, सो वी विल हाईलाइट दैट. अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज by telling the computer what content should be on the web page and how to display it. Google, Wikipedia, Yahoo, all are the example of websites. A collection of linked web pages is called website. This is important point to just keep in your mind, so that's why I have highlighted it. Now that we understand what web pages and HTML are, it's the time to learn how to create a web page of our story. In this part of the section, we will understand the basic of creating a web page to start building a web page of a simple story. Later on, we will learn how to add content like text, images and video to web page. Elements. What are the elements? The building blocks of HTML documents. These elements act like codes that are interpreted and displayed by the browsers. I'm going to make a proper fill in the blanks here through this called element. Like a building blocks of an HTML document is called an element. So this is a proper MCQ or fill in the blanks, you can say. So let's move ahead and find out the next thing. An HTML element is represented with a start tag. टैग का नेम लिखते हैं यहाँ पे, जो भी टैग हमें चाहिए होता है. अगर पैराग्राफ चाहिए तो वी विल राइट द P टैग. अगर हमें हेडिंग चाहिए, H1 चाहिए, हेडिंग किसी भी लेवल में चाहिए, तो वी ऐड द H1 to H6 इन दिस टैग, और इस फॉर्मेट में हम करते हैं, और ये हमारा मेथड है. तो यहाँ पे मैं टैग नेम को हाईलाइट करूँगी. ओनली टैग नेम हमारा कोई भी टैग नहीं है. इट्स जस्ट एन एग्जांपल दैट हाउ वी कैन डू इट. अब यहाँ पे मैं एक ये जो सिंपल सा एक प्रोग्राम जो यहाँ पे है वो मैं इसको लिखने जा रही हूँ. सबसे पहला जो कोड होता है हमारा टैग है वो HTML इज़ अ स्टार्टिंग टैग. वी ऑलवेज राइट द HTML टैग हेयर. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं दिस वर्ड इज़ बोल्ड. अब जिनको मैंने B टैग के साथ कवर किया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ये वाले जो हैं हमारे हैं बोल्ड टेक्स्ट के लिए अप्लाई किए जाते हैं. लेट्स सी कि हमारा जो वर्ड है वो बोल्ड होता है या नहीं. बोल्ड आपको पता है 3 बेसिक स्टाइल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट में, जिनसे आपका टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है. बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये 3 जो है वो बेसिक हाईलाइटेड होते हैं, जिनके थ्रू आपके टेक्स्ट में कुछ चेंज आ जाता है. लेट्स सेव दिस फाइल विच द
जैसे आपको पता है कि हम लोग फाइल को सेव करते हैं HTML एक्सटेंशन के साथ, तो मैं फर्स्ट के नाम से फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट HTML के नेम से मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देती हूँ। आई एम गोइंग टू सेव इट ऑन द डेस्कटॉप। और उसके साथ ही हम इसको मिनिमाइज करके ओपन करते हैं ब्राउज़र में। कोई भी ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल जो भी है आप उसमें ओपन कर लें। मेरे पास क्रोम भी है, एक्चुअली मेरे पास पाईचैम्प भी है जिसके साथ मैं इसको ओपन करती हूँ, बट यहाँ पर जो है वो मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज जो है मेरा एक मैंने इसमें किया हुआ है, तो उसके साथ मैं इसको ओपन करती हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी इसकी एक्सटेंशन दी हुई है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन द माइक्रोसॉफ्ट एज में क्या ये चीज़ आती है जिसको हमने अप्लाई किया था। वी अप्लाइड दिस फॉर द बोल्ड टेक्स्ट टू सेट, दैट्स वाई लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर नाउ। चेक इट। यहाँ इसको हम जो है वो ये हमारे पास आ गया। आप देखें जो वर्ड है जो इसको हमने बोल्ड के टैग के अंदर जो है वो क्या था, वो वाले जो है वो वर्ड बोल्ड हो गया है, थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ, ये एक सिंपल सी कोडिंग मैंने आपको बताई है, सिंपल सा मैंने आपको एक टैग जो है वो डिस्प्ले किया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओपन अ ब्लैंक पेज ऑन द टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड। वी यूज नोटपैड प्रोग्राम। बेसिक अगर आपने कोई काम करना है तो हम नोटपैड यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ये देखिए, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा मेरा PC के नाम से जो है वो एक मेरा ऐप है कि पाईचैम्प के नेम से, जिसके ऊपर मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में भी आपको दिखा दूंगी कि पाईचैम्प कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली हमने जो काम किया है वो वर्ड पैड पे किया है, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दैट टैग। यहाँ पर मैं एक और कोडिंग करने जा रही हूँ, जो कि मैं यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास HTML का टैग होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास हेड होता है, हेड इज़ यूज्ड फॉर हेडिंग, और हेडिंग जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। अब आप डिफरेंस देखेंगे टाइटल और हेडिंग में फ़र्क क्या होता है। मैं हेडिंग में एंटर करने जा रही हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ क्लोज़ कर देते हैं इसको / के साथ, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ टाइटल को ऐड करने, और टाइटल को मैं क्लोज़ करती हूँ सेम इसी तरह से। और टाइटल में मैं कुछ भी लिख देती हूँ, लाइक नेचर, एनीथिंग, कोई ऐसा चीज़ जो सिंपल सी एक चीज़ लिख देते हैं, नेचर लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल मेरा नेचर है, माई फर्स्ट वेबसाइट है नेचर अराउंड मी। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टाइटल टैग एज वेल। और उसके बाद जो है मेरा बॉडी टैग है। बॉडी टैग में फ़िलहाल मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कलर्स वगैरह अगर मुझे अप्लाई करने हो तो वी यूज़ द बॉडी टैग, तो मैं उसको यूज़ करते हुए उसके अंदर जो है वो कलर्स अप्लाई कर सकती हूँ राइटिंग के ऊपर, और साथ में जो भी टेक्स्ट है हमारा उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सेव दिस फाइल नाउ। हम इस फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं बॉडी का लिख देती हूँ, बट बॉडी में फ़िलहाल मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है। आई एम गोइंग टू ऐड ओनली द बॉडी टैग। ये हेड है एंड और फिर उसके बाद है टाइटल। अब नाउ यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, लाइक हैरिंग एंड लाइक टाइटल। यहाँ पे मैं हेड को क्लोज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हेड को इधर क्लोज करती हूँ, और यहाँ से मैं बॉडी को स्टार्ट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, एंड स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट मैं आपको यू कैन चेंज एनीथिंग लाइक कलर। हाँ, ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि आप बैकग्राउंड और कुछ भी करना हो आपने चेंज, तो आप बॉडी का टैग जो है यूज़ करते हुए उसके अंदर आप तमाम चीज़ों, स्टाइल एंड बॉडी, ये दो टैग्स ऐसे हैं जो कि आपकी लुक, उसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं। सो दैट्स वाई हम इनको यूज़ करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि यू कैन चेंज द एनीथिंग लाइक कलर ऑफ टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इन द बॉडी टैग। राइट नाउ आई एम सिंपली राइटिंग दिस कमांड ओनली। अभी मैं सिंपली कुछ भी नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिंपल एक क्लोज टैग लगा रही हूँ बॉडी का, लेकिन इसके अंदर कोई भी फंक्शन अभी नहीं है। सो लेट्स सेव दिस फाइल। हम इसको सेव कर देते हैं और दोबारा से हम ओपन करके देखते हैं कि हमारा इसका रिजल्ट क्या है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो मेरा नया वाला कोडिंग आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि नेचर अराउंड में जो है वो मेरा टाइटल है, जो कि पेज के ऊपर आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पे मेरी जो है वो माई फर्स्ट वेबसाइट जो है वो मेरी हेडिंग है, तो वो हेडिंग मेरे पेज के अंदर आ गई है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड हेडिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, ऑल द HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद HTML टैग। ये सबको पता होना चाहिए कि जो HTML टैग है वो इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को ओपन और क्लोज करने के लिए। द हेड एलिमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट लाइक द टाइटल। जो हेड एलिमेंट है वो आपका पेज के अंदर हेडिंग या
आपकी जो चीज़ है जो मेन होती है वो उसको हाईलाइट करता है. लाइक टाइटल, द टाइटल एलिमेंट कैन बी एडेड द सेट ऑफ टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द ब्राउजर के टैब पे शो होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऊपर टॉप पे जो शो हो जाएगा वो टाइटल होगा कि इस वेब का जो है ना टाइटल क्या है, और डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो है वो हेडिंग शो करते हैं. तो ये सिंपल सा इसका एक प्रैक्टिकल को सॉल्व किया है मैंने. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टाइटल आल स्टोरी एडिंग ये सेम थिंग इज हियर. टेक्निक्स एंड टूल्स को चेक करते हैं. टू सेव एन HTML डॉक्यूमेंट यू नीड द नेम, और फिर उसके बाद .html एक्सटेंशन के साथ आप उसको सेव करते हैं. यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं. टू एडिट अ सेव्ड HTML डॉक्यूमेंट विद .html एक्सटेंशन किस तरह से करते हैं. हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं. लेट्स मेक अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी. How do we edit HTML document? कि हम एडिट कैसे करते हैं और सेविंग कैसे करते हैं. यहाँ मेथड आपको नीचे लिखा हुआ है. राइट क्लिक ऑन द फाइल, क्लिक ओपन विद, सेलेक्ट द टेक्स्ट एडिटर यू वांट टू यूज इट, एंड देन यू कैन डू इट. ये एक पूरा हमारे पास एक आंसर भी इसका बन गया है. यहाँ पे ये एक क्वेश्चन शॉर्ट बन गया है जिसको आप इम्पोर्टेंटली इसको रिवाइज कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है कि आप इसको रिवाइज करें. अदरवाइज ओपनिंग एन HTML डॉक्यूमेंट विद एन HTML एक्सटेंशन विल ओपन द वेब पेज ऑन द ब्राउज़र. अदरवाइज क्या है, आपके पास ब्राउज़र है, आप डायरेक्टली जैसे कि मैंने अभी ओपन किया है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसको. अब आ जाते हैं हम हेडिंग एंड लेवल की तरफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. हमारे पास हेडिंग के लेवल 6 हैं. 6 क्यों है? बिकॉज हम सबसे बड़ा जो लेवल है दैट इज़ H1, सबसे बड़ी हेडिंग, और लोएस्ट जो है H6 है. अब H7 क्यों नहीं है? बिकॉज H7 इज़ नॉट विजिबल इफ़ यू अप्लाई इट. अगर आप H7 लिखेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा. A heading is a word or phrase at the top of the section that explain what it is about. Headings are always capitalized and consist of levels such as main and subheading. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, वेब पे डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर्स, एक्शन, all are headings that describe different aspects of the story. The title of the story is also a heading, but of the higher level, a main heading. टाइटल और मैं हेडिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे वो हम लेवल्स की बात करते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी लेवल्स? देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ हेडिंग. एलिमेंट्स और लेवल दोनों एक ही चीज़ में आते हैं. तो यहाँ पे H1 to H6 जो है वो करते हैं, और H1 इज़ द लार्जेस्ट वन, द बिगेस्ट वन एंड द प्रोमिनेंट वन. द मेन हेडिंग जिसे कह सकते हैं आप लोग कि आपकी मेन जो हेडिंग है वो आपकी H1 है, एंड ऑफन यूज फॉर द टाइटल ऑफ द वेब पेज. यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको अभी कि हम इन तमाम लेवल्स को कैसे कवर करते हैं. मैं सिर्फ HTML टैग को यहाँ पे रहने देती हूँ, और उसके बाद आई अप्लाई ओनली द लेवल 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग. H1 से H6 तक आई एम गोइंग टू राइट डाउन द लेवल्स, और जब मैं इसको रन करूँगी तो आपको डिफरेंस साथ पता चल जाएगा कि इनके लेवल्स क्या हैं, हेडिंग के लेवल्स किस तरह से डिफ़ाइन होते हैं. तो यहाँ पे दिस इज़ माय सेकंड हेडिंग. मैं इसको इसी तरह से एक सेंटेंस लिखती हूँ 6 तक. सो लेट्स सी इसके बाद क्या होता है. यहाँ हम H3 को फाइंड आउट करते हैं. दिस इज़ माय थर्ड हेडिंग. यहाँ मैंने सेकंड किया है, तो मैं यहाँ पे जो है वो थर्ड कर दूँगी. जस्ट फॉर द सेंटेंस, टू कंप्लीट द सेंस, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक और राइट यू कैन डू इट. आई एम जस्ट गिविंग फॉर एग्जाम्पल. यहाँ मैं स्लैश के साथ H3 एंड करती हूँ. H3 तक हेडिंग हमारे पास आ चुकी हैं, एंड लेट्स ऐड द फोर्थ वन हेडिंग, एंड दिस इज़ माय फोर्थ हेडिंग. और फोर्थ हेडिंग के साथ ही जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ H4 को क्लोज करती हूँ, और उसके बाद द फिफ्थ वन इज़ H5, एंड नाउ दिस इज़ माय फिफ्थ हेडिंग. Fifth heading, I'm going to close this now with the slash and H5. Here is H6, and this is my sixth heading, right, slash H6.
अब इसको सेव करके उसी पेज के ऊपर रन करके दिखाती हूँ, जिससे आपकी हेडिंग्स के लेवल आपको क्लियर हो जाएंगे। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड चेक द लेवल्स। हेडिंग H1 से लेके नीचे तक देखें, अगर हम 7 करते हैं तो वो बहुत ही एक शॉर्ट वाला और बहुत ही छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, जो हमें समझ में नहीं आ सकता। सो दिस इज द हेडिंग एंड लेवल, जो कि आपको कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट any other. The body element in the HTML document contain web page like heading, text, images and everything. Body element के अंदर हम ये काम कर सकते हैं. So just keep in your mind the tips are most important thing. Don't forget the tips. अब यहाँ पर है कोई अगर हमें इम्पॉर्टेंट मिलता है, ये सारा उस प्रैक्टिकल में कवर हो गया है जो मैंने आपको बता दिया है। हेडिंग के लेवल्स एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर कवर हो चुकी हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं एडिंग पैराग्राफ। तो एडिंग पैराग्राफ को आई थिंक हम नेक्स्ट में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी पी टैग हम यूज़ करते हैं और किस तरह से कवर करते हैं। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।